So first line will be import mysql.connector. Now you can check it. If it is getting executed, no error it is showing, that means your pip install is done properly. So in Anaconda, okay, this was your Jupyter. So in Anaconda, I have done pip install mysql connector python, and it was installed already. I have installed it. So here I have in Anaconda prompt, for ideally in command prompt, and for Jupyter Spider in Anaconda prompt. Here I have written pip install mysql dash connector python. This will not, you cannot do it in PyDroid 3 because I was not able to do it. In Termex you can try, online compilers, those things you have to try. So mysql dash connector dash python. Now here it will show that requirement already satisfied because I have already installed it. In your computer it will show 0%, 1, 2, 3, finally 100% installed. So this is already installed. This is not required. I will remove it, close window. Yes. Now first line I have written import mysql.connector. Now everywhere I have to write mysql.connector.connect, like that I have to write it. Okay. So I will do the connection first. For that, any object you can use here, any identifier. Now mysql.connect, you have to use mysql.connector.connect. So what I am doing is I am giving a alias name here, con or m I have. Now here instead of writing mysql.connector, I will use m.connect. In this, you will require 3 arguments minimum, that is host, user and password. While installing MySQL, whatever by default it is there, or whatever you have given password, username, that you have to use. So normally host is your local host, and username we are not changing, so by default it is root. If you are changing it, you will note it down, and that only you have to give here. So I haven't changed, so it was by default. And then you will use a password here. So password spelling is PASSWD. So here PASSWD equals to, now I will give the password. In my computer when I installed, that time I have given this. In your school computer it is 1 2 3 4. So when you will do it in school computer, you will type 1 2 3 4. This one, let me take from somewhere, and or just give me 1 minute. Okay, so here it was 1 2 3 4 5. So this is password. So this connection is done using these 3 arguments, that is host, is localhost, username is root, and password is 1 2 3 4 5. Now the next step will be, you can check, if you want to check it, you can check using con dot is connected equals to true or not. So here I am using if, then my object is this, then I will use here the function is connected function. So this will check. If it is equals to true, then it will print that connection is okay. So print connection okay, else it will print not okay, connection not okay.
Yes, so this is over. After this, ICCE I have already told you. Next will be cursor. So any variable you can write here, and then you will use the same object dot cursor, and we will execute the command. Now create database. Suppose you are using the database name as technology, or digital platform you were using. No. Which platform, like from Diksha you want to study, or you want to study from Swayam Prabha, so that also. So here you have to think about the database name, and that you can give. So I'm using technology name only. So I will create a database now with the name technology. But if second time when I execute this, since I haven't used the menu driven, what will happen? Again create database technology. If I write, it will show error because it will show database already created. So first thing what I will do is I will drop the database if it exists. Yes, so here I will use the object is c dot execute, and in this what I will write, the command is drop database if exists. Now name of the database I am giving here is technology. Now I will show you in MySQL there is no table. MySQL, you can see here. Yes, in MySQL, here actually the password was 12345. This was the password. Then in this, if I want to show you all the databases of this particular, in this computer, all the databases, it will show you the list. Here nowhere technology name you can see. Clear? Now when I will execute this, you will see technology name here. Clear? So I will start with creation of this table now. So what I have to write, c dot execute, and now I will create database technology. Create database technology. So it is created. Now when you will execute, it will show. Where it will show? Technology. Sorry. Yes. Now just मैम now, हाँ मैम ड्रॉप डेटाबेस वाला और एक बार समझा दीजिए. हाँ, ड्रॉप डेटाबेस को मैं समझा दे रही हूँ. सपोज मैं इस लाइन को हटा देती हूँ, तब समझ में आ जाएगा. इसको मैंने एग्जीक्यूट किया. ये क्रिएट डेटाबेस टेक्नोलॉजी है. मैंने यहाँ पे क्या काम किया है अभी तक? मैंने इंपोर्ट किया, मैंने कनेक्ट किया MySQL पाइथन को MySQL के साथ, कनेक्शन को चेक किया, और मैंने एक डेटाबेस को क्रिएट किया. तो मैंने इसको रन कराया. कनेक्शन ओके, ठीक है. इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखती कि प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड, तो वो भी दिखा देता. टेक्नोलॉजी डेटाबेस क्रिएटेड, ये भी दिखा देता. अब मैं जब सेकेंड टाइम रन करूंगी तो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये देखो. अब इसमें रन करा के देख लो. अब इसमें तुमको टेक्नोलॉजी दिख जाएगा. ये देखो, ये टेक्नोलॉजी दिख गया सिस के बाद. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी दिख रहा है. ये पहले नहीं था. यस सर. हाँ, ये पहले सिस के बाद नहीं था. ठीक है, तो अभी क्रिएट हो गया. लेकिन मैं फिर से जब इसको रन करा रही हूँ तो ये एरर दिखा रहा है. ये एरर आ गया. क्या लिखा है यस इसने? सर. टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड. ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया कि c डॉट
एग्जीक्यूट। इसमें क्या करना है, क्रिएट करने से पहले अगर पहले से है तो उसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, कौन सा वाला नाम क्या है, टेक्नोलॉजी, खाली टेक्नोलॉजी को वो हटा रहा है, अगर है तो, नहीं है तो फिर कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर है तो इसको हटा दे रहा है। अब ये सिंटैक्स, ये कमांड्स जो होते हैं ये डबल कोट्स में होते हैं। हाँ, हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगी अब एरर नहीं दिखाएगा। टेक्नोलॉजी डेटाबेस क्रिएटेड मैंने प्रिंट के साथ दिया था, ठीक है। तो अगर है तो हटा के क्रिएट कर रहा है, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दे रहा है, बस। अब इसके बाद क्या होगा, डेटाबेस मेरा बन चुका है। अब मेरे को क्या करना है, डेटाबेस के अंदर जाके टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर जाके, तो उसके लिए मैं इसको यूज करूंगी, कॉपी करके मैं यहाँ पे। अब इसमें तुम नेम को चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे कोई दूसरा नाम दे दिया, यहाँ पे तुमको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा कहाँ तुम क्रिएट करने जा रहे हो। तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, टेक्नोलॉजी था, टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, और इसमें मैंने contour डॉट कर्सर, पहले कर्सर के साथ फिर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्या लिखोगे तुम, a डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल, जो भी टेबल का नाम है तुम्हारा वो लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे a डॉट एग्जीक्यूट और क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे तुमको नेट से तुमने अभी क्या देखा, या तो तुम टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हो, डिजिटल एजुकेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा टेबल का नाम है। तो ये डिजिटल एजुकेशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें तुमको कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं, क्या उसका डेटा टाइप होगा, क्या उसका साइज होगा, ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो कॉलम नेम्स हमने सोचे थे, कहाँ चला गया ये, टेक्नोलॉजी, हाँ, क्रिएट टेबल के बाद हमको कॉलम नेम्स देने हैं। तो हम एक एक करके कॉलम नेम देना शुरू करेंगे। तो पहला सपोज कोर्स नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। कोर्स जैसे अभी दीक्षा के कोर्सेज चल ही रहे हैं, ठीक है। कोर्स, सॉरी क्या हो गया, RSC, कोर्स नंबर, एक एक मॉड्यूल्स चल रहे हैं तो वो मॉड्यूल नंबर डाल सकते हो। अब ये नंबर जो है वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, डेटा टाइप उसका। साइज उसमें सपोज 6 डिजिट्स तक डाल सकते हैं, 6। फिर कोर्स का नाम हमने डाल दिया, जो भी कोर्स का नाम है, कोर्स नेम। अब इसमें हमने varchar डाल दिया, कैर भी लिख सकते हो, छोटा साइज। इसमें सपोज हमको 9, बड़ा नाम देना हुआ तो 20 डाल, ठीक है। साइज दे दिए हम, कोर्स का नाम। उसके बाद कोर्स को हम लोग किस ऐप से कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं, जो सोर्स है, जैसे दीक्षा से कर रहे हैं, स्वयं प्रभा से कर रहे हैं, तो वो NPTEL से कर रहे हैं। तो कोर्स का जो भी सोर्स है, या फिर इसका कॉलम का नाम और क्या दे सकते हैं हम लोग, किस पोर्टल से कर रहे हो। सपोज यहाँ पे हमने पोर्टल दे दिया, दीक्षा पोर्टल से कर रहे हो कि NPTEL से कर रहे हो। अब पोर्टल का नाम क्या दोगे, कुछ भी कैर भी दे सकते हो या फिर varchar भी दे सकते हो, तो मैंने varchar दिया, ठीक है। अब इसका साइज हम 9 डाल रहे हैं सपोज।
और क्या देना है, किस टेक्नोलॉजी से, सपोज मोबाइल से करा रहे हो या लैपटॉप से करा रहे हो या टीवी के थ्रू करा रहे हो, कोई टेलीकास्ट हो रहा है, रेडियो के थ्रू पॉडकास्ट हो रहा है, तो वो तुमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने विच टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे मैंने सपोज डिवाइस टेक्नोलॉजी, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी डाल देते हैं। इसको क्या बोलोगे, मोबाइल से करा रहे हो, मीडियम, ठीक है, टेक्नोलॉजी लिख देते हैं। तो ये भी एक नाम हो गया तुम्हारा, टेक्नोलॉजी भी एक नाम हो गया। तो इसमें नाम में हम क्या डालते हैं, हम var स्ट्रिंग है varchar, और इसका साइज हमने 9 दे दिया, बस हो गया। जब हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसमें क्लोज करके, तो ये ऑटोमेटिकली तुमको दिख रहा है क्रिएट टेबल का जो कर्ली ये क्लोज है, उसके बाद डबल कोट्स है। तो ये हमारा हो गया क्रिएट टेबल, ये दिखाएगा टेबल क्रिएटेड। तुमको अगर चाहिए तो यहाँ पे एक प्रिंट कमांड दे दो, प्रिंट कमांड दे के टेबल क्रिएटेड तुम लिख दो, टेबल क्रिएटेड। टेबल क्रिएशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, वैल्यूज डालते हैं। वैल्यूज कैसे डालते हैं, इंसर्ट इनटू। अब इसमें इतने सारे वैल्यूज डालने के लिए मैं अगर एक फॉर लूप यूज करूं तो ज़्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितने कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज है, 10 कोर्सेज है, मैं n करके यूज़र से ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ कोर्सेज, एंटर नंबर ऑफ कोर्सेज, ये मैंने यूज़र को डिस्प्ले किया। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर एक्स इन रेंज, जितने कोर्सेज है n तक, और इसमें इसके बाद हमको यूज़र से पूरा इनपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या क्या इनपुट लेना है, जितने कॉलम्स हैं, कोर्स है, कोर्स नेम है, पोर्टल है और टेक्नोलॉजी है। तो 4 कॉलम तुमने अभी क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, सपोज कोर्स नंबर के लिए C यूज़ कर रही हूँ, C इक्वल्स टू, अब नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, इंट इनपुट एंटर कोर्स नंबर, एंटर कोर्स नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे n में हम क्या डालेंगे, एंटर कोर्स नेम, तो खाली इनपुट एंटर कोर्स नेम। अब इसके बाद वाला क्या है तुम्हारा, पोर्टल है, p इक्वल्स टू इनपुट एंटर पोर्टल, इनपुट एंटर पोर्टल नेम और विच पोर्टल इट इज। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, कौन से टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हो, तो इनपुट, जैसे टीवी से टेलीकास्ट किससे कर रहे हो, ठीक है, तो एंटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हो गया चारों। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हम सारे इनपुट ले चुके हैं, तो इसके बाद हम करेंगे इंसर्ट इनटू। अब ये फॉर लूप के अंदर है, तो कभी कभी इसमें ठीक है हम ऊपर कॉन्टू से ही करते हैं, जो ऊपर हमने कर्सर और कॉन्टू लिखा है हम उसी से ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तब हम लोग उसको एक न्यू, यहाँ पे न्यू कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सीधे हम उसी में डाल रहे हैं। तो उसका नाम क्या था हमारा, जो हमने टेबल क्रिएट किया था, कॉन्टू नाम था। तो उसका कर्सर क्रिएट हमने किस में किया था, ए में किया था। तो ए डॉट एग्जीक्यूट करके लिख देते हैं, ए डॉट एग्जीक्यूट। अब इसमें क्या कमांड लिखना है तुमको, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो इसमें इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन। इसको ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, एजुकेशन। अब
वैल्यूज डालने से पहले जो कॉलम्स हमने ऊपर डाले हैं उन कॉलम्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कॉलम्स को मेंशन किया है। पहला कॉलम क्या है, कोर्स नंबर है। दूसरा कॉलम क्या है, कोर्स नेम है। तीसरा कॉलम पोर्टल है और चौथा कॉलम टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद क्या करना है, हमको वैल्यूज डालना है जो हमने यूजर से लिए हैं। तो वैल्यूज में हम यहाँ पे ये थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट जो है ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ क्या चेंज है, जब हम इसमें फॉर्मेट्स एक्चुअली यूजर से लेके हम जब पाइथन के थ्रू डालते हैं इसमें वैल्यूज को कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कर्ली ब्रेस यूज करेंगे और बाद में फॉर्मेट को मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहला वाला इंटीजर है तो पहले वाले में विदाउट कोट्स, फिर सेकेंड वाले में विथ कोट्स कर्ली ब्रेस, फिर थर्ड में भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मतलब विथ कोट्स कर्ली ब्रेस, देन फोर्थ भी स्ट्रिंग है तो विथ कोट्स। तो ये हो गए चार वैल्यूज। चार वैल्यूज होने के बाद डॉट फॉर्मेट करके हम फॉर्मेट करके जो वेरिएबल्स हमने यूज किए, कौन कौन से, CNPT हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो CNPT बस। अब जब हम इसको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब में हमको कमिट करना पड़ता है, और नहीं तो क्या होता है वो ओल्ड रिकॉर्ड्स, कोई ओल्ड डेटास, कोई टेबल कोई दिखाएगा। कमिट करने के बाद ही वो परमानेंटली सेव करके फिर, तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा con2 है तो यहाँ पे हम con2 डॉट कमिट, परमानेंटली ये सेव हो गया। अब इसके बाद हमको सिलेक्ट क्वेरी से डिस्प्ले कराना है। सिलेक्ट क्वेरी के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम, हाँ बोलो। मैम कॉन्टू में तो नेक्स्ट टाइम हम लोग टेबल को तो कनेक्ट नहीं किए। ये ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे फिर से और एक बार डाल देंगे, देख लेते हैं ना। अगर नहीं एग्जीक्यूट एरर दिखाएगा तो हम फिर से कनेक्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि एक ही बार कनेक्शन से अगर वो काम नहीं कर रहा है। अभी एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, फिर मैं, पिछले बार हम लोगों ने फिर से उसको कनेक्ट किया था फिर किया था, यू आर करेक्ट। तो एक बार बिना उसके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट क्वेरी अब हमको यूज करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डिजिटल एजुकेशन है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यस, ओके। तो ये खत्म। अब मैं उसको फेच करके फॉर लूप से, तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन करके फेच ऑल लिख के भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फॉर, अब रोज को लेना है एक एक करके, तो मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, कुछ भी ABCD कुछ भी हम रो लिख दे रहे हैं। इन कहाँ से, A से, कोलन और प्रिंट रो, ये हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम फिर से एक बार कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। हाँ, कनेक्शन ओके। टेक्नोलॉजी डेटाबेस क्रिएटेड, टेबल भी क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ कोर्सेज 2 डाल देते हैं अभी। कोर्स, पहला कोर्स हम लोग 202 डालते हैं। कोर्स का नाम हम लोग दीक्षा कोर्स, दीक्षा पोर्टल से करेंगे, निष्ठा कोर्स कर देते हैं, निष्ठा कोर्स कर देते हैं। निष्ठा कोर्स हो गया। अब पोर्टल का नाम कहाँ से कर रहे हैं, दीक्षा पोर्टल से कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी सपोज मोबाइल से अभी कर रहे हैं हम लोग, मैं मोबाइल से कर रही हूँ। फिर कोर्स, दूसरा कोर्स क्या है, 303 है, तो यहाँ पे 303 हो गया, 303। और इसमें कोर्स का नाम हम लोग सपोज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स, या मेरे को अभी कोई नया कोर्स करना है, AI का कोर्स करना है, सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करना है,
स्वयं प्रभा से करना है, मैं खाली स्वयं प्रभा से या NPTEL से AI का कोर्स चल रहा है तो NPTEL कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी इसमें मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ। सिलेक्ट क्वेरी रन हुआ, ठीक है। ये सिलेक्ट क्वेरी से उसने आउटपुट दिखा दिया। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है, तुम्हारे पास MySQL है, तुमने शो डेटाबेस करके टेक्नोलॉजी देख लिया था। अब तुम यहाँ पे यूज डेटाबेस करोगे, किसको तुम्हारा क्या था नाम, टेक्नोलॉजी डेटाबेस का नाम था। फिर इसमें क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो तुमने अभी नाम दिया था, क्या नाम था इसका, डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है डिजिटल। अच्छा, इसको तुम और एक काम कर सकते थे, शो टेबल करके देख लो पहले, उसके बाद करो शो टेबल्स करके देख लो वो टेबल क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। हो गया डिजिटल एजुकेशन। अब तुम यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिजिटल एजुकेशन, निष्ठा AI, दीक्षा पोर्टल, इंटेल पोर्टल, टेक्नोलॉजी। आ गया समझ में कैसे करना है। अब इसके यस साथ सर। ये तो खाली मैंने सिलेक्ट क्वेरी दिया, तुमने यूजर से कुछ कंडीशन पूछा, सर्च करना है, उसको वेयर करके डाल दोगे। सपोज मेरे को कोर्स नंबर 303 डालना है तो यहाँ पे 303 चेक करना है, तो यहाँ पे वेयर कंडीशन सिलेक्ट के साथ वेयर कंडीशन आ जाएगा, तो खाली उसी कोर्स को वो दिखाएगा। तो ये तुमको खाली याद रखना है, यहाँ से कमेंट अगर लिख रहे हो खाली इतना तुमको याद रखना है, बस याद नहीं समझ लेना है, याद नहीं रखना है, समझ लेना है बस। आगे समझ में। सो दिस इज योर टर्म 2 प्रोजेक्ट। अभी से सिनॉप्सिस में तुमने ऑलरेडी बाइनरी CSV डाला है, इसको भी तुम सिनॉप्सिस में अभी डाल दो, खाली इसको उससे कनेक्ट नहीं करोगे, इसको अलग से उसमें डालोगे।